वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी की सांस से है जिंदगी का सोज़े दरो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान ज़बरीन आशिक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। नाज़रीन, आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि पिछले कुछ सालों से वादी कश्मीर में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर की तादाद में इजाफा हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका शिकार मर्द और औरत दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसके सबसे ज्यादा शिकार औरतें हो रही और होती है। इस सूरत हाल में घर और मुआशरे पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो औरत की सेहत का ख्याल करे, इसको पेश आमद सेहत के मसाइल से न सिर्फ बाखबर करे बल्कि औरत को हर दम आगाही बहाम पहुंचाते रहे ताकि औरत अपने और अपनी सेहत का ख्याल रख सके। इसी तनाजुर में आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबे बायो रिसोर्स और इंडियन कैंसर सोसाइटी नई दिल्ली में जम्मू व कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल के बाहमी इश्तराक से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फ्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कम अवेयरनेस के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान साहिबा और कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार साहिब और शोबे बायो रिसोर्स के सरबराह डॉक्टर मंजूर साहिब के अलावा प्रोफेसर परवेज कोल, श्री सौरभ भगत और डॉक्टर शेख जहूर अहमद, डॉक्टर शमीमा बानी के साथ साथ प्रोफेसर, तलबा और स्कॉलर्स ने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। We at the Department of Bioresources thought that breast cancer, as we see the statistics coming out through different sources to us, we started in 2019 working on this, that what direction our research proposals should move on. So we started the triple negative breast cancer research work on that field, and since then we are trying to link up this with the societal setup, because we know that in our society there are been increasing the number of breast cancer cases, and we want to link it because awareness. First thing is that we should have the breast health education. If we have the breast health education, then there will be awareness among the people. This is a early stage, and if steps are not taken to prevent, at least slow down the incidence of this cancer, the time will come when all of us, God forbid, our nears and dears may be suffering from this deadly disease. The aim of sensitizing people who should be knowing about breast cancer and knowing that there is a possibility that there are multiple factors that you can intervene in and alter your risk of breast cancer. Cancer, as we know, is an interplay of genetic factors and a lot of lifestyle and environmental factors. That is, screening in the urban area is still better, but when you go to rural area, the screening level is still lower. Now we are also realizing that since I have been in the Kashmir Valley from almost 20 years now, so one phenomena that I have observed is that the age of marriage of women is gradually going ahead, and therefore women are getting married much later, and therefore childbirth is happening later. That is also predisposing the women to this kind of a problem. Obviously, use of contraceptives in an unsystematic manner and use of hormones is another issue. As we see that more cases are happening or more cases are to be reported in urban areas than rural areas, so it's a matter of great concern. We at the University of Kashmir are committed. We are there to extend any type of support, whether it's research, from research point of view, from extension point of view, from advocacy point of view. I would request both Director Skims, Professor Parvez Kohl, and our Commissioner Secretary DST. We should definitely, in a collaborative effort, try to reach to more masses. And we carry forward the mission, particularly Honorable Vice Chancellor service in different capacity in the University of Kashmir. We believe in the extension activities of University of Kashmir, and fortunately the presence of University of Kashmir is almost in every nook and corner of the valley. We have a Kupwara campus, we have a Anantnag campus, we have Balangla campus, we have here in Srinagar we have 2 campuses, we have a campus at Gulmarg also, we have Jammu campus also. So
the presence of University of Kashmir is almost everywhere. Conferences about different papers or books or research, and we'll be keeping it updated continuously. These are different videos or informations, whatever are available in the public domain, or the screening camps what we did. जी, जिस तरह आपने देखा कि हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटिव काउंसिल है, इसका मैंडेट ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो कि कश्मीर स्पेसिफिक है, जम्मू स्पेसिफिक रिसर्च प्रोग्राम्स, उनको फंड करें। हम लगभग यहाँ की कश्मीर और जम्मू के लगभग जो करीब 12-15 यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि IUST है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर है, सुकास्ट है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वो सभी यूनिवर्सिटीज को हम फंड करते हैं और वहां पे हम रिसर्च प्रोग्राम रन करते हैं। उन्हीं में से एक जो एरिया जो हमने आइडेंटिफाई किया, जो ब्रेस्ट कैंसर मिटिगेशन या रिसर्च है, इसके ऊपर ये बहुत बड़ा आज इवेंट हुआ। इवन ये भी आज फैसला किया गया कि अगले साल 2023 के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, जहां पे जो अच्छे इसमें साइंसदान हैं या अच्छे रिसर्चर्स हैं या इवन जो सक्सेस स्टोरीज है, उनको बुलाया जाएगा ताकि इसका अवेयरनेस दूर तक जा पाए। एक और चीज जो आज आइडेंटिफाई की गई कि जो अर्बन ऑडियंस है, जो अर्बन जो हमारे जो रिमोट एरियाज में नहीं लोग रहते हैं, उनको तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी ट्रेन करना जरूरी है। हो सकता है एक बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ता है, अगर उसको अवेयर करें तो वो अपनी दादी को या अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनको उनकी जान वो बचा पाए अवेयरनेस क्रिएट करके। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रीच आउट करेंगे, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के थ्रू बल्कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पॉलिटेक्निक, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी इसको स्प्रेड किया जाए। सर, जानना चाहेंगे क्या सिनेरियो कश्मीर में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से? हाँ, जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का ताल्लुक है, जो हमारा स्किम्स का डेटा है और जो GMC श्रीनगर का डेटा है, ये दो बड़े मेन इंस्टीट्यूट है कश्मीर वैली के। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ब्रेस्ट कैंसर स्लोली इंक्रीज हो रहा है और जो फोरकास्ट किया जा रहा है दैट इट विल इंक्रीज फर्दर इन कमिंग ईयर्स आल्सो। और इनफैक्ट ये कुछ साल पहले, कुछ 5-10 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर ओवरऑल नंबर 2 या नंबर 3 पे आता था। फीमेल्स में भी ये नंबर 2 पे आता था, अब लेकिन ये कुछ सालों से नंबर 1 पे है। सो ये ओवर द ईयर्स इसका जो इंसिडेंस है, नंबर्स है, वो इंक्रीज हुए हैं। सर, इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में आपकी राय क्या है जो आज डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्स ने ऑर्गेनाइज किया? हम इस बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं? ये सबसे पहले जो है, किसी भी बीमारी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हमको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, कितना वसी है ये तकलीफ, वो पता होनी चाहिए। इसके कॉजेज क्या है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये तकलीफ में मुब्तला हो इंसान, तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है अवलिन स्टेज में। तो उसके लिए ऐसे प्रोग्राम जो एजुकेट करे, अवेयर करे लोगों को, मासेस को, वो बहुत जरूरी है। आप अक्टूबर के पूरे महीने में लोगों को छाती के कैंसर से आगाही से जुड़े रहे। आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस में जाके बेदारी प्रोग्राम इनेकाद किए। इस बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और ब्रेस्ट कैंसर एज अ डिजीज, इस पे आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें। जैसे आप जानते ही हैं कि ब्रेस्ट जो अक्टूबर का महीना है, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस महीना मनाया जाता है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज है, एक छोटी सी पहल की है इसमें कि लोगों को बेदार किया जाए, क्योंकि 30 to 50% ऑफ जो ब्रेस्ट कैंसर केसेस हैं दे आर प्रिवेंटेबल। फाइन, अगर हम राइट स्टेप्स ले लें, ब्रेस्ट एजुकेशन दें, ब्रेस्ट अवेयरनेस दें और अर्ली डिटेक्शन हों ताकि लोग इस बीमारी से बचें। तो इस बारे में हमने भी एक अंडर द ऑनरेबल वाइस चांसलर जो हमारी प्रोफेसर नीलोफर हसन खान साहिबा है, उनकी सरपरस्ती में एक मुहिम शुरू की जिसमें हम डोर स्टेप्स पे गए डिफरेंट कॉलेज को जो अक्रॉस द वैली है, ऑलमोस्ट 15 डिग्री कॉलेज फ्रॉम कुपवारा टू शुपियान टू अनंतनाग टू गांधरबल। वी ट्रैवल्ड to their doorsteps and we want those college students or those colleges to become our brand ambassadors to spread the word of mass awareness। उसके बाद हमने एक जो वेबसाइट का वो लॉन्च की, एक वेबसाइट बनाई इसी टाइम में, जिसमें हमने पूरी इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे रखी है रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंसेस, बुक्स, इवेंट्स, वीडियोस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं वो हमने एक प्लेटफॉर्म पे रखे हैं। फिर हमने इस साल में पिछले 3 साल से हम इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। कुछ 10-30 पेपर्स हमने ऑलमोस्ट पब्लिश किए हैं। फिर 5 बुक्स लिखी है, जिनका आज 2 बुक्स का आज लॉन्च भी हुआ है जो हमारे पास अवेलेबल थी, रिप्रेजेंटेटिव बुक्स जो हमने एल्सेवियर पब्लिशर के USA के साथ लिखी हुई है। तो हमारा यही है कि जो ये
गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 जो कॉलेज में हमारे यहाँ टीचर्स हैं या अदर एम्प्लॉइज हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का कि इट इज प्रिवेंटेबल, इट इज ट्रीटेबल इफ इट इज डिटेक्टेड अर्लियर। तो हमारा ये एक उस सिलसिले में एक पहल है और ये कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। विल ऑर्गेनाइज मोर प्रोग्राम्स एंड नेक्स्ट ईयर वी हैड प्लान्ड दैट वी विल बी हैविंग एन इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस। वी विल बी inviting the people all across the globe who are the experts in the field of breast cancer. Then we will continue this awareness campaign, and we have been, our Honorable Vice Chancellor has told us today that we will be collaborating with different institutes like Sher-e Kashmir Institute of Medical Sciences, and then Central University of Kashmir, and then Kashmir University, and other various research institutes, so we can make a comprehensive awareness campaign so that it reaches to nook and corner of the valley, so that we can prevent this disease. सर, बायो रिसोर्स के शोबे होने के नाते जानना चाहेंगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स के हवाले से, क्या ऐसे प्रोग्राम्स आगे वो देखने को मिलेगा? नहीं, बायो रिसोर्स का ये है कि जब हम इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो हम आगे भी इस चीज को ले जाएंगे। हमारा रिसर्च का जो इंडीवर है वो कंटिन्यूअस रहेगा, और फिर जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं ये हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। वी विल गो टू डिफरेंट कॉलेज, वी विल गो टू डिफरेंट हायर सेकेंडरीज, और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको साथ लेके चलेंगे, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से। और फिर इंडियन कैंसर सोसाइटी का और जो वो एक ब्रांच यहाँ पे खुलने जा रहा है, और एक हमने ये प्रपोज किया है कि कश्मीर ब्रेस्ट कैंसर सोसाइटी बनाएं जिसमें प्रोमिनेंट फिगर्स, स्टेक होल्डर्स को हम ऑन बोर्ड ले सकें। सो दैट इज अवर मैसेज दैट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डिफीट द ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वैली। थैंक यू मैम। क्योंकि आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की माहिर हैं, हम इस खास बीमारी के बारे में आपसे ही जानना चाहेंगे। इस खास बीमारी के बारे में आपको ये बता दूंगी कि पहले हम बोलते हैं अगर किसी को कैंसर होता है बोलते हैं ये मर गया। कैंसर डेडली नहीं है, कैंसर डेथ नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको पहली स्टेज में पकड़ते हैं तो जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक। और इसीलिए हम लोग ये कैंप्स कर रहे हैं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब ही है आप अपना चेकअप तब करा दो जब आपको कोई बीमारी नहीं लग रही है, एसिम्प्टोमेटिक। आप अपना चेकअप कराओ, आपको डॉक्टर देखेगा, अगर उसको लगता है कोई प्रॉब्लम है वो आपको आपकी जांच कराएंगे। अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम निकलती है वो पहली स्टेज में होगी या 0 स्टेज में हो सकती है, और पहली स्टेज 99% क्यूरेबल है। तो ये मुद्दा है आज का, ये इस अवेयरनेस कैंप का मुद्दा है। जीएमसी छाती के कैंसर की बीमारी से निपटने के लिए किस तरह का काम कर रहा है? जीएमसी इस बीमारी को निपटने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट है, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हम लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, हमसे जितना होता है हम लोग करते हैं। हम लोग सर्जरीज करते हैं, हम लोग कीमोथेरेपीज देते हैं, पेशेंट्स को काउंसल करते हैं, अटेंडेंट्स को काउंसल करते हैं, जितना हमसे हो सकता हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट का भी इनेकाद किया गया है। छाती के कैंसर के हवाले से आगाही की मुहिम और इसे बचने के लिए क्या क्या हिकमतें और कौन सा बेहतर तरीका और कौन कौन सी दवाई कारगर साबित हो सकती है, इस हवाले से माहिरीन तिब और अहले इल्म ने लोगों को वाज़ेह तौर पर इस हवाले से आगाह किया। Let's defeat breast cancer together. नाज़रीन, दीजिए मुझे अपनी मेजबान जबरीन आशा के साथ कैमरा पर्सन राथू रोशन आरा को इजाजत। अल्लाह ने के बान।